Sanchali Arora, welcome you all to the third episode of Sanchali is a Misfit. Well, the whole idea is, of course, to bring in and talk about fitness in sports, which has been, I think, a love of our country, and especially a sport like cricket, which we all simply adore. And today we are joined here, or will be shortly joined here, by none other than the ace cricketer, the medium fast bowler, Mohit Sharma. Well, the achievements that he has are immense. It's like non-stop. For whatever time he has played, whether he has played in Ranji, whether he's played in IPL, whether he has played the World Cup for India, the achievements are something that we all can actually count, talk about, and not only we, the world has been talking about it. He is an absolutely adorable man, and what I will do is take a second and get him right here with me, joined by someone very special. What we will do is let me first go live on Facebook, and then simultaneously we will be going live on Instagram. You have, there we are. Hi, Mohit. Okay, Mohit is already there on Facebook and there on Instagram, and joined by his gorgeous wife, Shweta. Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? Hi Shweta, thank you very much for joining us here. We know that Mohit जो है, he is a fast bowler, लेकिन प्यार में भी वो काफी fast है. जो आपकी love story शुरू हुई, I think I'm not gonna wait even for a second and spoil this for the friends. So जिन लोगों को पता है कि मोहित की शादी को अब करीब 2016 में आपकी शादी हुई थी. Is that right? So Shweta, let me start by talking to you. Yeah. हाँ. 2016. 28 मार्च की कोई Instagram की post थी, if I'm not wrong, where we were telling her कि बहुत सारे साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को. That was my birthday. That was your birthday? 28th March was your birthday. So January was your engagement or your marriage? Engagement actually. So आप लोग सबसे पहले तो obviously Shweta, I want to know like how did you fall in love with this absolutely handsome man? I'm sure कोई भी I see that face right here. हमें इतना पता है कि मोहित को आपकी आंखों से प्यार हुआ, आपको मोहित की किस चीज से प्यार हुआ? मुझे मोहित की हर चीज से प्यार हुआ. I started falling in love with the way he started loving me. Was the first thing. Live जा रहा है थोड़ा ध्यान से. Yeah, the way you know, the care, the love, so much patience with me. So all that made me fall in love with him. So Mohit, Neelam knows it better. Huh? Neelam अंदर नीचे लिख रही है कि I knows it better. तो मुझे पता चला था जो मैंने पढ़ा, whatever has been like floating all around, कि आप इनसे मिले एक पार्टी में, and then what happened is like you really liked her, and immediately आपने इन्हें second day propose कर दिया, and she took some time to like realize कि हाँ पहले मैं देख लूँ लड़का सही है कि नहीं है, then I will say yes. So जी ऐसा ही कुछ हुआ था. हम लोग एक कॉमन फ्रेंड की डिनर पार्टी में मिले थे. उसके बाद देन थोड़ा रहता है ना, बीइंग अ क्रिकेटर आप लोग थोड़ा होता ही है ऐसा कि, तो फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था कि थोड़ी बहुत बात बढ़े आगे, कैसे हो सकती है कैसे नहीं हो सकती है. देन सेकंड डे जब हम लोग कलकत्ता से निकले मैच खेलने के बाद, देन मैंने इसे फोन पे पूछ लिया था कि यार कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, लाइक हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब से बात कर रहे हैं और वी जस्ट टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स. सो फिर So basically we started flirting around, and then oh, that's so cute. That's a typical love story. That's how it should be. और बड़ी जल्दी आप लोगों को पता चल गया था, you know, you guys are kind of made for each other, and the progression automatically happened in the same way. जी. So अच्छा मोहित, आपने अपनी एक आपकी शादी का वीडियो है जो इंटरनेट पे है, वो मैंने भी देखा और आप लोगों ने अपना प्यार उसमें बयान किया है. So I remember you sang a song for Shweta, right? क्या आप आमिर खान के फैन हैं, लेकिन आपने गाना शाहरुख खान का गाया था, if I'm not wrong. If we can hear a few lines of those songs, it would be really nice. यार And friends, you can tell us which song it was if you know. अब एक्चुअली अब 4 साल बाद ना गाना चेंज हो गया है. अच्छा, तो आज के लेटेस्ट कौन सा गाना है? एनी सॉन्ग जो नहीं गाने तो हम लोग दोनों ही हम बेसिकली सॉन्ग लवर्स हैं. हम बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं. अभी पंजाबी गाने बहुत ज्यादा सुनते हैं हम लोग, तो चलते रहते हैं. अभी बेसिकली अब जस्सी गिल के गाने हैं या बब्बल है हमारा दोस्त, उनके गाने हैं, तो हम काफी गाने सुनते रहते हैं. लेकिन उस टाइम पे जब श्वेता को मैंने गाना डेडिकेट किया था, तो वो था कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं उस टाइम पे. तो बेसिकली हाँ अभी भी है वो सब चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ. But yeah. So हम लोग तो शादी अटेंड नहीं कर पाए थे मोहित. ऑब्वियसली बहुत लोग जो चाहते थे, आपके फैंस थे. अगर आप एक बार वो 2 लाइनें गा देंगे तो इट विल बी रियली नाइस.
यार मैं Yeah, he's too good. मैं भूल गया हूँ एक्चुअली मुझे श्वेता डिमांड हाँ You're too good. मैं क्या है वो, मैं तो लिरिक्स भूल गया हूँ यार, तुझ में बस वही याद है। दिखता हाँ, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, बस इतना ही। ये आगे लिरिक्स ये भूल गया। सजदे सर झुकता भी है. सजदे सर इसका झुकता है, बढ़िया है, good। That's a वैसे beautiful बेसिकली love मैं story. पुराने सॉन्ग्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे किशोर कुमार के गाने बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि वो एक जोन सेट हुआ पड़ा है मेरा काफी टाइम से, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पुराने गाने। और आजकल आप और श्वेता आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग, अगर आपने इसी बात का जवाब देना होता है तो आप कौन से गाने से देंगे? Were you impressed with his singing skills as well? Yeah, I am. And आपको क्रिकेट का शौक है? क्रिकेट का शौक पहले तो नहीं था, but then yeah, now yeah, I am too much into cricket. Like yeah, when he's playing, then only, otherwise नहीं. मतलब मेरी बॉलिंग में मार लगी तो पूरी टीम खराब है। So, yeah, when he's playing, then I do watch cricket. But when he's not, then I'm like not that much interested. But if he's playing, then I can watch Ranji also. अच्छा, then you can So- watch Ranji also. मतलब otherwise जैसे yeah. हमारा वाला पहले हालत था ना, ODI देखेंगे 50 ओवर्स वाला सबसे कम होता है, उसमें T20 आया तो T20 is like easily you can watch it, and उसमें No, मतलब I पूरी can. एनर्जी पूरा धमाल रहता है. Yeah, So, no, I can आपके watch लिए like yeah, Shweta, Yeah. go on, please. हाँ no, जी. I can So- watch 5-day match if he's there, bowling and playing full day. So do you give any advice to मोहित कि उन्हें ऐसे खेलना चाहिए, या ऐसे अगर वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे इस तरीके से भागते हुए आएंगे, या I do that during IPL. कई बार कोच बन जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ले आता हूँ उसे वापस से ना कि जमीन पे ही रहो, थोड़ा ज्यादा कोच वोच बनने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ग्राउंड में आप इतना थक हार के आते हैं, फिर रूम में आने के बाद ना मैं कभी प्रेफर नहीं करता था पहले भी, कि मैं कभी ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि घर पे आने के बाद क्रिकेट की बातें हों। तो वो चीज घर वालों को तो बहुत जल्दी समझ गए थे कि जब 2-3 बार बात करते थे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। श्वेता को थोड़ा टाइम लगा उस चीज में, क्योंकि ये ज्ञान देना शुरू कर देती है No, जल्दी। but basically I have never advised him for bowling, but fielding I do that. अभी Yeah. कोच बनने को तैयार है, वो देख रहे हो ना, फील्डिंग Because बॉलिंग। fielding में और sometimes श्वेता सीख गई है ना इतने सालों में, 4 साल तो हो ही गए, इतना तो सीख ही गई है श्वेता. और 4 साल हो गए शादी को, 3 साल डेट किया है हमने, तो वो भी है 7 साल हो गए यार पूरा। we dated around 3.5 years. 3.5 years. So I think अब तो आप डेफिनेटली कोच बन सकते हैं, और कोविड के टाइम में तो मुझे लगता है कोई भी कोच बन सकता है. और फील्डिंग कोच तो मैं बिल्कुल बन सकती हूँ. बिल्कुल, ये मैसेज मैं कैफ को दे दूंगी, वो पिछली बार हमारे साथ थे, वो वैसे भी फील्डिंग कोच है इनकी टीम में. बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी टीम के हैं, और मेरी टीम हाँ, के फील्डिंग कोच है। दिल्ली कैपिटल्स के हैं, तो आई थिंक आपस में आप दोनों मिलके इनके लिए कोई स्ट्रेटजी में भी डिजाइन कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता, बहुत लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज में कोई गाना सुने. आई एम नॉट गोना इग्नोर यू गाइस दिस टाइम, आई प्रॉमिस यू. वो एक्चुअली जो चाहता है ना, वो कई बार हमारी आवाज में गाना सुन चुकी है। वो बहुत ही श्वेता की बेस्ट, हमारी बहुत ही क्लोज दोस्त है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, सुगम ने बोला है। हाँ, सुगम ने बोला है. सुगम ने, अच्छा, सुगम बार बार बोल रही हैं, सो आई एम श्योर आपकी आवाज अच्छी होगी श्वेता, तभी वो बार बार बोल रही हैं. Not at all, but still I'll try one. Okay. मुझे Ladies क्या and मालूम। gentlemen, bringing to you the gorgeous, the absolutely beautiful Shweta singing a nice चल। romantic number for. अब गाना भूल मैंने जाएगी, romantic अपनी तरफ से बोल दिया है. इतना तगड़ा इंट्रोडक्शन के बाद गाना याद नहीं रहेगा। देखिए मेरा फोन भी हिलने लग गया, इतना धमाल हुआ है यहाँ पे. श्वेता, any song you like. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इतनी देर में. चॉकलेट बॉय, मोहित भाई, आपको जेलसी होती है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं मोहित के लिए? एक्चुअली आई थिंक कोई लड़का दे रहा है कॉम्प्लीमेंट, सो इट्स ओके. और सब दोस्त ही हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं। लव यू गाइस. ओके, श्वेता काफी गहरी सोच में पहुंच गई है टू थिंक ऑफ अ सॉन्ग. मैं गाना सोच रही हूँ. Can you just talk to him in the meantime? Okay, so Shweta के पास हम वापस आएंगे, तब तक let me just talk to Mohit. Thank you Mohit. I think Shweta के साथ I think you guys make an absolutely beautiful couple, and I think बहुत सारे comments compliments आपके लिए आ रहे हैं. Hi everyone. तो शुरुआत करते हैं आई थिंक हमारे शो की एक फॉर्मल वे में. एंड मोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली आपकी जर्नी आपने एक बार नहीं काफी बार बयान की है ऑन योर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू हर्ड द इंटरव्यूज. इट हैज नॉट बीन लाइक फॉर यू. सबसे पहले, nobody in your family was actually a cricketer, ना कोई दूर दराज का कोई था. हाउ डिड क्रिकेट कम टू योर माइंड?
नहीं बिल्कुल you went through every level before you बिल्कुल मेरी came on हाँ cricket team. मेरी फैमिली में कोई भी क्रिकेटर कभी रहा नहीं है, लेकिन जैसे पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी हमारे इंडिया में क्रिकेट रिलीजन है, आपको पता ही है, सब क्रिकेट को कितना एडमायर करते हैं, कितना फॉलो करते हैं। तो मेरे पापा भी उनमें से एक थे। जब वो मेरी उम्र में थे तो उस टाइम बेसिकली टीवी का इतना ज्यादा साधन होता नहीं था, और साइकिल पे वो बताते थे कि साइकिल पे रेडियो रखी और रेडियो से ही पूरा मैच सुनना होता था उन्हें, ये सब चीजें करनी होती थी। तो वो कहानियां हैं हमारे पास जो मेरे क्रिकेटर बनने से पहले मैं सुन चुका था। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई भी, जो मेरे से ऑलमोस्ट 5 या 6 साल बड़ा है, वो लोग भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो थोड़ा हमने भी उसी टाइम पे, ऐसा नहीं था कि ये लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, उन्होंने मुझे क्रिकेट में डाला या अकेडमी जाना शुरू किया। तो बस वही मुझे लग रहा था कि जब वो इतना क्रिकेट देखते थे तो धीरे धीरे हमने भी क्रिकेट देखना शुरू किया, इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। जब गली मोहल्ले के मैचेस खेलने शुरू किए तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि आप एकेडमी क्यों नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस करिए, आप खेल सकते हैं। फिर एकेडमी गए, फिर एकेडमी में लगा कि फिर धीरे धीरे स्टेप, एक एक स्टेप लेते रहे, आगे आगे की तरफ बढ़ते रहे। और फिर लकीली, मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि सारी चीजें मेरे लिए एक जगह आके बन गई, मेरे लिए अच्छा रहा। वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा रहा मेरे लिए। तो मोहित, आपने लाइक जब हमारी बात हुई थी आपने बताया था कि जब आपने मेन एकेडमी, जब फरीदाबाद एकेडमी में या फिर जहाँ पे भी नेचुरल प्रोग्रेशन रहा, तब आपके वहाँ पे पैसे भी उस टाइम पे इतने नहीं होते थे, लाइक 400 रुपीज का कुछ एडमिशन, 2000 रुपीज की कुछ फीस थी, बट यू ऑलवेज हैड लाइक योर पेरेंट्स सपोर्टिंग यू। तो आपने किसी ना किसी तरह वो एडमिशन ले ही लिया, वहाँ एकेडमी में चले गए। वो कहानी क्या है? एक्चुअली विजय यादव सर हैं, ये फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं, हरियाणा से ही खेले हैं। और मैं उन्हीं के अंदर काफी टाइम तक मैंने कोचिंग लिया, अभी भी मैं कोचिंग उन्हीं के अंदर करता हूँ। तो जब मैं नॉर्मल एकेडमी में जाता था बेसिकली बल्लभगढ़ में, तो वहाँ पे 6-8 महीने में गया। तो जो मेरे पहले कोच थे श्याम सर, वो बेसिकली मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि हम बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग कराते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे उस टाइम पे। और नए लड़के थे तो मुझे लगता है सबको करनी भी चाहिए, तो इतनी मेहनत की आदत थी नहीं। तो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद मैंने जाके एकेडमी छोड़ दी। फिर वो 2 बार मैंने एकेडमी छोड़ी, तो तीसरी बार मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे कि मैं कैसे कि फिर ये होता है कि झिझक होती है आपके अंदर कहीं ना कहीं जाने की। तो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे लगा कि यार वापस से क्रिकेट खेलनी है। वो एक कहते हैं चुल वापस से जागा क्रिकेट का। तो फिर विजय सर के पास जाना था, लेकिन उस टाइम पे कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि आप ये सोच सकें कि यार मंथली चार्जेस हैं, फिर एडमिशन चार्जेस हैं, वो एक साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो फिर एक भैया थे हमारे, नवीन भैया हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है मेरे कैरियर में। तो उन्हें वो खेले थे सर के साथ, तो मैं उन्हें लेके गया तो कि भैया ऐसे ऐसे बात है और आप चलिए सर से बात करिए, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो माफ करेंगे, कुछ भी होगा। तो सर ने फिर एडमिशन चार्जेस माफ कर दिए थे। और शुरू में 3-4 महीने का गच्चा मैं खा गया था, 3-4 महीने की फीस मैंने दी नहीं। तो फिर धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आ गई थी। तो ट्रैक पे बहुत बढ़िया है यार, आई एम ग्लैड। लेकिन आपकी जो आपकी लाइफ ट्रैक पे आई, लेकिन आपने, मोहित कह सकते हैं कि आपका नाम ना इजीली हम कह सकते हैं लाइक मोहित इंजरी शर्मा। मतलब लाइफ ट्रैक पे जरूर रही और आप क्रिकेट भी खेलते रहे, लेकिन यू आर सो प्रोन टू इंजरीज, इट्स नॉट इवन फनी, राइट? आपकी बैक इंजरी हुई पहले शुरू में, आपकी एंकल भी आपका गया, उसके बाद आपको डेंगू भी हुआ, राइट? और एक बार नहीं, मतलब बार बार, मतलब it's like आप कुछ अचीव करते हैं और उसके बाद you have to take a back seat because you have an injury. So I think cricket में या किसी भी sports में, one, it is not easy to deal with an injury, लेकिन उसके बाद to come back is even more difficult. How did you deal with all this? नहीं बिल्कुल, जैसा आपने बोला, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज होती है कि मैं एक तो हर इंसान का बॉडी अलग अलग होता है, उसका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, उन प्रेशर्स को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। और कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग में भी और मैचेस के अंदर भी। तो हाँ, मैं इंजरी प्रोन था शुरू से। मैं फ्रॉम टो टू हेड में इंजर्ड हो चुका हूँ सारी जगह। मेरा एंकल से लेके मेरे शोल्डर तक, मेरी नेक तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, बस अनलकी कहूंगा इस मामले में कि मैं हमेशा जब भी जरूरत होती है पीक टाइम पे कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता हूँ। तो 100% फिट होके बहुत कम क्रिकेट खेला हूँ, कहीं ना कहीं इंजरीज में क्रिकेट काफी खेला हूँ। लेकिन कभी ये पार्ट एंड पार्सल है गेम के, आप इनसे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यार ये टोटली अनकंट्रोलेबल है। आप प्रोसेस पे ही ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने जो ऑफ द फील्ड वाला प्रोसेस था वो बहुत ईमानदारी से किया हमेशा। कभी भी इंजर्ड होता था तो 6-8 महीने बहुत मेहनत करता था वापस फील्ड पे आने के लिए। यस, वो 6-8 महीने आपको कहीं ना कहीं मेंटली झंझोड़ देते हैं बिल्कुल, कि आप वापस से कैसे खेलेंगे।
जब आप इतने दर्द में ऑलरेडी खेल चुके होते हैं और वापस से फिर आप 4 महीने कुछ नहीं करते हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बेड रेस्ट है, फिर वापस से आपको अपने आप को जीरो से गैदर करना है और वापस से ग्राउंड पे जाके अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए सेम आपको डबल इंटेंसिटी के साथ वापसी करनी है। तो ये सब कहीं ना कहीं मेंटली टोल तो है इस चीज का, जो मुझे लगता है बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा। लेकिन मैं इतनी बार इंजर्ड हो चुका हूँ कि मुझे वो प्रोसेस एक्चुअली पता चल गया है कि उससे बाहर आने का प्रोसेस क्या है। तो इसलिए अब मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। यस, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अगर मैं देखूंगा तो मेरे कैरियर पे उस चीज का इफेक्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इन चीजों से कहते हैं ना कि आप करते करते डील करना सीख ही जाते हैं और आप इन चीजों से हट नहीं सकते हैं पीछे। आप खेलेंगे, अब वही बात है, आप सड़क पे गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी लगेगी पक्का। ट्रू, लेकिन मोहित आपने सिर्फ इतना ही नहीं है कि इंजरी हुई रिकवर किया, यू यूज्ड टू ट्रैवल यू नो टू लाइक एवरी डे। आपने बताया था कि आप हर रोज ट्रैवल करते थे टू गो टू अ फिजियो, राइट, और फिर वापस आते थे। मतलब ये जर्नी, इट्स नॉट अबाउट आप इतने पेन में है, इतना कुछ है, लेकिन आपने इसको लाइक आई वुड वांट यू टू शेयर दैट, नॉट मी शेयरिंग इट विद एवरीवन। ये जनरली जो आप बात कर रहे हैं ये हमारी मैं अंडर 19 में मेरे को बैक इंजरी हुई थी और उससे पहले मेरे को कभी भी कोई बड़ी इंजरी हुई नहीं थी। वो स्ट्रेस इंजरी थी बेसिकली, और पहली बार मेरे को कोई स्ट्रेस इंजरी हुई थी। तो मुझे ये पता नहीं था कि उसके लिए करना क्या है। तो काफी टाइम वेस्ट हुआ मेरा, मैं इधर उधर घूमा। मैं ऑलमोस्ट, हमारा ये हो गया था कि यार अब मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, क्योंकि रात को सोते हुए आप जैसे ही करवट लेते थे तो इतना ज्यादा दर्द होता था कि आप बिल्कुल चिल्लाने लगते थे। उस तरीके का दर्द था कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हालत खराब थी। तो फिर और उस टाइम पे हमारे पास कोई ज्यादा फिजियो भी नहीं थे, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज थी नहीं कि आप किसी फिजियो के पास जाएं। और फिर वो जो फिजियोथेरेपी नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं उनके पास आप जाते थे तो वो कहीं ना कहीं 200 300 400 रुपए पर सिटिंग लेते थे। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा हैवी पड़ रहा है उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि एक हमारा प्लेयर था फास्ट बॉलर हरियाणा का, बिल्ला, वो इंजर्ड हुआ था, उसे बैक प्रॉब्लम हुए थे, बैक इश्यूज हुए थे। तो उससे मैंने पूछा कि कैसे ठीक हुआ। फिर दिल्ली में बद्री एक फिजियो था उनका, दिल्ली डेयरडेविल के पास उस टाइम पे असिस्टेंट फिजियो। तो बेसिकली उसके पास फिर मैं गया। उसने मेरे को 4 महीने रेगुलर, मैं यहाँ से बल्लभगढ़ से हमने ट्रेन पास बनवा लिया था, तो डेली की डेली उधर जाना होता था, फिर शाम तक उधर से वापस आता था। तो लेकिन उस प्रोसेस को मैंने काफी इंजॉय किया है। मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि मैंने उस टाइम पे काफी स्ट्रगल किया है। यस, अगर किसी दूसरे की नजर से देखोगे तो उसे लगेगा कि आप यार सुबह 6 बजे 5 बजे उठना, फिर 6:15 6:20 वाली ट्रेन पकड़नी, देन आपको 7:30 8 बजे उधर पहुंचना, फिर वहां से स्टेशन से कम भी 40 मिनट का रास्ता था, आधे घंटे का कोटला का, वहां पे पैदल जाना। तो वो चीज मेरे को कभी भारी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उस प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रहा था। मुझे मालूम था कि ये चीज मुझे ठीक कर देगी। तो जब ये चीज पता थी कि ठीक कर देगी तो एक वो पॉजिटिव वाइब बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे मालूम था कि मैं वापस से क्रिकेट खेल पाऊंगा। क्रिकेट को इतना ज्यादा पसंद करते थे उस टाइम पे। तो उस चीज ने हमेशा पुश किया। इनफैक्ट कई बार मुझे लोगों ने बोला है कि भैया बहुत मोहित आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। तो मैंने यही बोला कि यार मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। मैंने हर उस चीज को, हर स्टेप को एंजॉय करने की कोशिश करी है। यस, कहीं ना कहीं आप दुखी होते हो फॉर अ सर्टेन टाइम, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको वापस से बैक अपने आप को अपने आप ही करना पड़ता है। आपके साथ हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है, आपको सब पॉजिटिव बोलेंगे, बहुत अच्छी बातें भी बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप खुद को पुश नहीं करेंगे तब तक वो चीजों से रिकवर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, और आपने बहुत अच्छे से पुश किया। और इनफैक्ट लोग यहाँ जानना भी चाहते हैं कि आप बहुत फिट लग रहे हैं इस टाइम, तो कोविड के होते के बावजूद। तो कैसे आपका फिटनेस रूटीन इस टाइम क्या चल रहा है? नहीं, मैं वापस से इस चीज को, वही जैसे मैंने बोला कि हम लोग अभी बैक की सर्जरी कराई है मैंने पिछले साल ही। इनफैक्ट तो हम लास्ट टाइम पे हमें यही ऑप्शन बचा, लगातार 2 साल से मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहे थे। तो इस साल हमने फिर प्लान किया कि हम बैक की सर्जरी कराएंगे, और बैक की सर्जरी के बाद आप छोड़ नहीं सकते उस चीज को बीच में। तो ट्रेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, नहीं तो वापस से वो वीक होना शुरू हो जाती है। और फिर आप नहीं चाहते हो कि आपने जो पीछे 8 महीने में इतनी मेहनत करी है वो वापस से सारी की सारी बेकार हो और वापस से आप स्क्रैच से शुरू करें। तो इसलिए मैंने प्रॉपर, जब लॉकडाउन होने वाला था तो कहीं ना कहीं सबको लग गया था कि बंद होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, सबके सामने प्रॉब्लम बढ़ी रही थी धीरे धीरे। तो मैंने 2 दिन पहले कोशिश किया कि जितना भी मेरी ट्रेनिंग का सामान है वो मैं एटलीस्ट ले आऊँ अपने घर पे। और फिर जब मैं बहुत ज्यादा अभी ये है कि अब अच्छा खासा मेरे पास जो भी एनसीए का प्रोग्राम है या जो मेरे हरियाणा के ट्रेनर्स हैं उनका प्रोग्राम है, वो दोनों का प्रोग्राम है मेरे पास। मैं मिक्स करके कहीं ना कहीं हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि 4 दिन वो प्रोग्राम करता रहूँ। तो बस यही राज है कि अभी जो अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम रनिंग भी करूँ बाहर जाके, तो उसकी वजह से मेंटेन रख पा रहा हूँ अपने आप को।
सो यू डेफिनेटली मेंटेन, और आई थिंक आपने रणजी में तो बहुत अच्छा खेला ही खेला, एंड ऑब्वियसली दैट वाज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन उसके बाद टू आईपीएल, कि आपको वहां नोटिस किया गया, और उसके बाद आप इंडिया टीम के लिए भी खेले और स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड कप। तो जब आप वर्ल्ड कप में गए तो आपने ऑब्वियसली आपको ये जो फोन कॉल आई थी, और जो डायरेक्टली वहां से नहीं, जिससे आपको पता चला था फर्स्ट टाइम यू गॉट टू नो कि हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया, वो बड़ी फनी सी स्टोरी है, क्योंकि आपने बहुत डाटा उस बंदे को, जिसने आपने बताया कि आपको कि क्यों आपको ले भी लिया गया है कि नहीं लिया गया है। सो अगेन मोहित, व्हाई डोंट यू शेयर दैट स्टोरी विद अस? नहीं एग्जैक्टली जब मैं टीम आईपीएल अच्छा गया मेरा, रणजी ट्रॉफी अच्छा गया, उसके बाद आईपीएल अच्छा गया, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब जिम्बाब्वे का टीम बन रहा है, नए लड़के सारे के सारे, ऑलमोस्ट 6 से 7 डेब्यू होते हैं जिम्बाब्वे के तौर पे, तो दिमाग में था, लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा थी कि मैं वो चीज 50-50 था कहीं ना कहीं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, तो वो वाली कंडीशन थी, बीच में था कहीं ना कहीं। तो जब अचानक से मेरे पास एक फोन आया, और उससे पहले मुझे कोई न्यूज नहीं मिली थी, और मैं अकेडमी में था उस टाइम पे, कि और मैं जस्ट बॉलिंग डाल के हटाई था, तो कहीं ना कहीं दिमाग गर्म था हल्का सा, क्योंकि गर्मी वाला ही टाइम था, आप मई में आपने आईपीएल खत्म करी है, और उसके बाद जून की बात थी वो, तो एक रिपोर्टर का फोन आता है और बोलता है कि आप क्या बोलेंगे इस बारे में कि आप इंडियन टीम में आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो तब तक मेरे पास कोई न्यूज नहीं थी, तो मेरे को लगा किसी दोस्त ने मजाक कर रहा है, कुछ होगा इधर उधर के, क्योंकि मेरा बहुत पुराना नंबर है, एक ही नंबर जब से चलता आ रहा है। तो फिर 2-3 बातें, अपना नंबर देख लीजिए, नहीं मैं पुराना नंबर चल रहा है। नहीं अब तो सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज का। तो फिर उसने 2-3 बातें मैंने उसे सुनाई, लेकिन फिर बाद में जब घर से फोन आया, फिर पता चला कि फिर सभी के फोन बजने लगे, काफी सारे फोन आ गए। देन उसे मैंने उस सब के बाद उसे घर वालों से बात करने के बाद उसे वापस से कॉल बैक किया, उसे सॉरी बोला, और उसे बोला कि नहीं सर, आप सबसे पहला इंटरव्यू आप ही करेंगे, डोंट वरी, जो भी होगा। फिर मैंने सबसे पहला इंटरव्यू उसे ही दिया था। तो इस तरीके से इनकी बात खबर पहुंची, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो जब आप ओके इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए, उससे पहले आप ऑलरेडी इंटरनेशनल, हाँ सॉरी गाइस, हाँ उससे पहले आप ऑलरेडी इंटरनेशनल जा चुके थे, तो आईपीएल मतलब आप जिम्बाब्वे ऑलरेडी, यू हैड ऑलरेडी प्लेड एन ओडीआई राइट, सबसे पहला जो था आपका वो। तो व्हेन यू गो टू अ फॉरेन लैंड, और सबसे पहली बार जब आप वहां पे गए, वाज द रिसेप्शन द सेम जो हमारे इंडियन प्लेयर्स का, मतलब जैसे एक नया प्लेयर वहां गया है, डू यू फील दैट जो इंडिया का एक रिसेप्शन होता है व्हिच इज फुल ऑन विद सो मच एनर्जी, एंड इवन विद द प्लेयर्स, या जो इंटरनली में भी बीसीसीआई के लोग हैं, या यू नो जो भी कमिटी में लोग हैं, जिस तरीके से ग्रीट करते हैं, क्या बाहर भी प्लेयर्स को उतना ही अच्छा रिसेप्शन मिलता है? नहीं बिल्कुल, जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनफैक्ट किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ही बड़ी चीज है यार। देश को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी चीज है, वो भले ही क्रिकेट में हो या आप बॉर्डर पे जाके करें, किसी भी तरीके से करें, आप किसी भी फील्ड में करें, वो बहुत बड़ी चीज है। तो जब मैं पहली बार टीम के अंदर गया, तो मैं उससे पहले एक सीजन आईपीएल खेल चुका था, मेरा आईपीएल अच्छा गया था, और डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट हम लोग सभी प्लेयर्स के साथ खेल लेते हैं। तो और जो बहुत बड़े प्लेयर्स थे जिम्बाब्वे टूर पे, वो सब रेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे विराट हमारा कप्तान था, और विराट के साथ मैं अंडर 19 से क्रिकेट खेल चुका हूँ साथ में। तो और जो 7-8 लड़के डेब्यू हुए थे, वो सब वही थे जो मेरे एज ग्रुप के थे, या मेरे साथ क्रिकेट काफी ज्यादा खेले हुए थे। तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि सब एक ही जोन में थे, सब अपने आप अपने अंदर खोए हुए थे कि कैसे अगर हमें चांस मिलेगा तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो और जो हमारा स्टाफ था उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, डंकन, जो डेविस, इन सब ने बहुत ही अच्छे से फील कराया, बहुत कंफर्टेबल फील कराया उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रिसेप्शन था वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। तो और आपका कोई ऐसा who's your favorite player वहां पे, जब आप इंटरनेशनल वहां गए, कोई ऐसा प्लेयर था जिसके साथ आप चाहते थे कि मैं उनको बोल करूं, you know there is at least one player who should be like batting and maybe I should it will be a dream to bowl to him? नहीं यार, मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं कभी पाजी के साथ खेल पाऊं, सचिन सर के साथ खेल पाऊं, उनके साथ एक टीम में खेल पाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांस मुझे कभी मिला नहीं। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट खेल पाया। मैं हरियाणा के लिए जब उनका आखिरी मैच वो खेल रहे थे, मैंने उन्हें आउट किया उनकी लास्ट इनिंग में, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उनके साथ नहीं खेल पाया कभी। तो वो एक रिग्रेट हमेशा लाइफ में रहेगा। इंडियन टीम के लिए भी मैं कभी नहीं खेल पाया उनके साथ, क्योंकि जब मैंने डेब्यू किया वो उससे पहले रिटायर हो गए थे। तो वो चीज है। आईपीएल में उनके साथ खेला हूँ, लेकिन वहां पे भी अगेंस्ट ही खेला हूँ, एक टीम में नहीं खेला। तो वो एक रिग्रेट मेरा जिंदगी भर रहेगा। साथ जरूर नहीं खेले, लेकिन आई एम श्योर उनको आउट करके जो एक, आई थिंक अगर इंडिविजुअली देखा जाए, दैट फीलिंग यू नो कि आपने सचिन को आउट किया है, यू नो दैट मस्ट बी लाइक
like absolutely amazing, you know, to have a player like that जिसको आपने आउट किया है. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक फीलिंग तो अच्छी होती है, बट जब मैंने पाजी को आउट किया था तो उस टाइम पे ये भी था कि पाजी की लास्ट इनिंग है. मैं बहुत खुश था आउट करने के बाद. जब हमारे लाली में हमारे होम ग्राउंड में मैच हो रहा था और मैं जब फाइन लेग पे गया पाजी को आउट करने के बाद, तो ओवरऑल पूरे हरियाणा के ही लोग थे. तो मुझे याद है कि नाना करते हुए शायद 10 से 15,000 लोग उस ग्राउंड में होंगे, जहाँ पे इतने लोग बैठ भी नहीं सकते हैं. तो और इनफैक्ट ज्यादा ही होंगे, शायद 20-25,000 लोग ना हो. तो जब पाजी आउट हुए और मैं फाइन लेग पे फील्डिंग करने गया, तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 5 से 8,000 लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं और वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे गालियां दे रहे हैं. तो वो चीज एक ऐसी थी कि मुझे लगा कि हाँ यार, मैंने आउट तो किया है, लेकिन ये लोग भी हरियाणा के हैं, हरियाणा टीम ऊपर है, अभी अपर एंड हरियाणा के, और गाली भी मैं ही खा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है. तो फिर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में जैसे ही पाजी आउट हुए, उसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो गया. आपने उनको जाके सॉरी बोला कि सॉरी जी मैंने आपको आउट कर दिया? नहीं, लेकिन वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई थी कि आपको बुरा लगा कि आपने पाजी को आउट किया. मैंने बोला नहीं, बुरा तो नहीं लगा मुझे. ऑब्वियसली कोई भी बॉलर सोचेगा कि एक बार मैं किसी भी बड़े प्लेयर का अपने बैग में रखूं कि यार एटलीस्ट जब मैं क्रिकेट छोड़ूं या कुछ भी करूं तो मेरे पास कुछ विकेट ऐसी हो जिन्हें मैं जिंदगी भर के लिए याद रख सकता हूं. तो मुझे वो वाली फीलिंग थी कहीं ना कहीं. लेकिन हाँ, अब ये भी था कि इसके बाद पाजी क्रिकेट नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक. शायद उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं वो, मुझे लगता है कि, या शायद इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले हैं, वो डोमेस्टिक का लास्ट सीजन था शायद. तो वो लास्ट था. तो उसके बाद ये होता है कि आप देख नहीं पाएंगे सचिन तेंदुलकर पाजी को कभी भी ग्राउंड पर. तो वो एक था थोड़ा सा जो मुझे लगता है. आपकी लाइफ में आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा है? समथिंग जो आपको हमेशा याद रहेगा, नॉट लाइक कि ठीक है बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिनके लिए आपको प्रेज किया जाता है, आई एम श्योर, पर उनमें से आपके सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है? द वन व्हिच यू विल. यार देखिए, मेरा पहला मैच ही मेरे बहुत क्लोज था, क्योंकि मुझे पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच मिला और मैं दूसरा प्लेयर था जिसे मैन ऑफ द मैच मिला संदीप पाटिल सर के बाद. तो वो बहुत क्लोज है. लेकिन उसके बाद अगर मैं सिचुएशन के हिसाब से लगाऊं तो 2 मैचेस और हैं मेरी लाइफ में जो मुझे लगता है कि प्रेशर वाइज और दूसरी चीजों के हिसाब से जो मेरे बहुत क्लोज रहेंगे. एक, जब हम 2014 T20 वर्ल्ड कप का जब हम फाइनल खेल रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका, तो क्योंकि मैं कभी उससे पहले वर्ल्ड कप खेला नहीं हूँ और मैं वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि किसी भी प्लेयर के लिए वर्ल्ड कप खेलना. तो एक वो चीज थी. और उस T20 वर्ल्ड कप में मैं वो फाइनल मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है. हम हार गए थे, हम रनर्स अप थे उस मैच में, लेकिन वो स्टिल मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है. और उसके बाद जो दूसरा मैच है, उस 2014 के वर्ल्ड कप में मैं इनिशियल टाइम पे इंजर्ड हो गया था, तो मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेल पाया था. तो मुझे वो वाली फीलिंग कभी पता ही नहीं चली कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का जो एक वो ऑरा बना हुआ था मेरे सामने, जो हम क्रिकेट देखते आ रहे थे पिछले 10-12 साल से, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया कभी हारा नहीं है, हमेशा पाकिस्तान को हराया है, तो वो ऑरा मैंने कभी देखा नहीं था. तो जो दूसरा मैच है वो 2015 के वर्ल्ड कप का है, जब हम पहला मैच खेलने जा रहे थे और पहला मैच ही पाकिस्तान के अगेंस्ट था. और मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था. मुझे याद है कि इनफैक्ट ब्रेकफास्ट मैंने ठीक से नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इतने प्रेशर में था. आपको पता था कि आप मैच खेल रहे हैं. और उसके बाद जब मैं ग्राउंड पे गया, तो ग्राउंड पे भी जब मैं बैठा तो खाने के लिए, तो मैंने चावल और दाल डाले थोड़े से, क्योंकि थोड़ा आपको कार्ब चाहिए होते हैं मैच से खेलने से पहले. लेकिन वो भी मैं खा नहीं पा रहा था और मेरे बाजू में धोनी बैठा हुआ था. तो माही भाई मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि यार मुझे मालूम है कि तुझे ये फील हो रहा होगा कि बहुत बड़ा गेम है, लेकिन तू ऑलरेडी 2 साल इंडिया के लिए खेल चुका है, तू 2014 का वर्ल्ड कप खेल चुका है, उससे पहले तो 3 IPL खेल चुका है. तो ये नॉर्मल, यही सोच कि एक नॉर्मल क्रिकेट मैच की तरह तू अंदर खेलने जा रहा है, और जो चीज तेरे को बोली जाए बस वो प्लान फॉलो करने की कोशिश करना. तो जब उन्होंने ये सब चीजें बोली कि जो प्लान है बस उसे फॉलो करना है, अगर उसे फॉलो करते हुए तुम 6 बॉलों पे 6 छक्के भी खा जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे कोई गाली नहीं देगा, वो छोड़ दे सारी चीजें. और ऐसा कुछ है ही नहीं है कि कुछ और सोचना भी है दिमाग में, बस जो बोला जा रहा है वो जाके सीधी लाइन पे आपको करना है काम. तो वो चीज, उस चीज ने मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत इजी कर दिया था मेरे लिए चीज. और जब जाके मैं अंदर जब हम खड़े हुए नेशनल एंथम के लिए, तो मुझे याद है कि अराउंड एडलेड में 90,000 लोग होंगे उस टाइम पे. और उन 90,000 लोगों में जब नेशनल एंथम बजा तो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वहाँ पे, उन स्पीकर्स की आवाज नहीं आ रही थी और सिर्फ उन लोगों की आवाज आ रही थी जब वो नेशनल एंथम गा रहे थे. तो वो जो फीलिंग थी, वो फीलिंग कहीं ना कहीं आपको ऐसा कर देती है कि आप रो रहे हैं, आपके आंखों में पानी होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
और देन आप ऐसे पंप अप होते हो कि यार अब तो बस अब जो है तो देखा जाएगा, आप ग्राउंड के अंदर भेजो, बस मुझे जल्दी से जल्दी बॉल डालने को मिले और मैं कैसे भी करके अपनी टीम के लिए कुछ कर सकूं। तो ये 2 मैचेस हैं, जो 3 मैचेस हैं जो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे रहे मेरे लिए। सो इंडिया पाकिस्तान मैच स्पेशली जैसे आप बात करते हैं, सो एज ए पाकिस्तान मैच जो होता है उसकी ना एक फील ही अलग होती है। सो आई एम श्योर आपके लिए ऑन ग्राउंड एक मेंटल प्रेशर तो है ही कि यू नो इट्स एन इंडिया पाकिस्तान मैच। ग्राउंड पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ जो आपको याद है? आई थिंक काफी सारी बातें चलती हैं जो प्लेयर्स के बीच में चलती है ऑन ग्राउंड, यू नो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोबेबली, या कुछ तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको पर्टिकुलरली याद हो उस मैच से? ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी ऑन कैमरा तो हम बता नहीं सकते हैं वो सब चीजें। तो काफी सारी चीजें होती हैं जब हम आपस में एक दूसरे को, जब अगर किसी को लगता है कि मैं प्रेशर, अभी मुझे मेरे फेस पे वो प्रेशर दिख रहा है और हाँ। उसका इफेक्ट टीम को पड़ सकता है, तो कुछ हाँ। प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो वो बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर है, तो वो लोग हाँ। आके आपको 5-10 मिनट में ऐसा कंफर्टेबल फील करा देते हैं या कुछ ऐसी आपके साथ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप बहुत ही फनी वे में वो चीजें फिर आगे निकल जाती हैं और आप उस प्रेशर से निकल जाते हैं और देन वापस से आप गेम में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन वो सब चीजें बोलने लायक नहीं होती हैं। वो बहुत ही इस तरीके का होता है कि आप किसी दूसरी टीम प्लेयर का मजाक कर रहे हैं या अपने ही प्लेयर का किसी का मजाक कर रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील हो, लेकिन वो सारी चीजें हो रही होती हैं टीम के लिए, तो वो एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ की जाती है चीजें। तो जितना कैमरा पे कैच हो जाता है वो हो जाता है, उतना ही जानकारी हमें मिलेगी, बाकी वी डोंट गेट टू नो। ओके जी। there was a question which is coming जो कह रहे हैं कि they are asking कि माही का आपकी लाइफ में कितना सपोर्ट रहा है? Has Mahi been a supportive was a supportive captain to you as a co-player? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट माही भाई, इट्स लाइक कि क्योंकि मैं माही भाई के अंडर बहुत क्रिकेट खेला हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 साल 4 साल इंडिया खेला तो उन्हीं की कप्तानी में खेला चारों साल। देन मैं 5 साल अगर सीएसके के लिए खेला तो उन्हीं की कप्तानी में खेला। तो 8 से 9 साल में क्रिकेट उनकी कप्तानी के अंदर खेला। तो कोई भी प्लेयर किसी भी कप्तान के अंदर 7-8 साल बिताता है या 6-7 साल बिताता है तो कंफर्टेबल हो जाता है, आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है कि आप बिना बोले बहुत कुछ समझ जाते हैं चीजें, कि वो क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है, और आपका कप्तान आपको समझ जाता है कि आप प्रेशर सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं और आप नॉर्मल सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, आप नई बॉल से या पुराने बॉल से कैसे बॉल डाल सकते हैं। तो वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं माही भाई के साथ मेरी बन गई थी और अभी भी है वो बॉन्डिंग इनफैक्ट हमारे साथ। तो हम लोग ऑफ द फील्ड भी काफी कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि हम इतना क्रिकेट साथ में खेले जिसकी वजह से वो मुझे इतना जान पाए जितना मैं अपने आप को नहीं जान पाता हूँ ऑन द फील्ड। तो बेसिकली वो मेरे ऊपर से हमेशा प्रेशर हटाने का काम करते थे। उन्हें लगता था कि अगर ये प्रेशर ले रहा है किसी चीज में तो कई बार वो फील्डिंग लगाने का प्रेशर खुद ले लेते थे, या अगर मेरे को 3 बॉलों पे 3 चौके लगे हैं, 4 बॉलों पे 4 चौके लगे हैं, तो उसके बाद वो आके मेरे से नॉर्मल बात करके बोलते थे तू चाहता क्या है, कौन सा बॉल डालना चाहता है, उस हिसाब से बस वो ये नहीं कहते थे कि फील्डिंग क्या चाहिए। जनरली कोई भी कप्तान आके पूछता है कि आपको फील्डिंग क्या चाहिए, उसके बाद आप क्या बॉल डालेंगे वो आपके ऊपर रहता है। लेकिन वो हमेशा ये बोलता था कि अगली बॉल क्या डालने वाला है, तो मैं उसे बताता था कि मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला बॉल डालूंगा। उनके बाद उसका दूसरा कमेंट नहीं होता था कुछ भी, वो बोलते थे ठीक है। वो हमेशा वो ये चाहते थे कि तुम क्लियर रहो अपने दिमाग में कि तुम करना क्या चाहते हो। So Mahi is generally also is a very well composed and a very calm person. उनके साथ मैंने काफी सारे शोज किए हैं और सबसे अच्छी बात है चाहे वो ऑन ग्राउंड हो जो है जो अपनी टीम के लिए सपोर्टिव रहते हैं, इवन व्हेन ही इज ऑफ द फील्ड, यू नो, इवन ही इज अटेंडिंग एन इवेंट और ही इज लाइक वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, यू नो ही मेक्स श्योर दैट एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ इट। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट Mahi व्हिच आई ऑलवेज फेल्ट वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और जो वो कहते हैं उनकी बड़ी सोच, उनकी बड़ी एक तरीके से वो क्लियर सोच है, देयर इज नो here and there। Exactly. जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही क्लियर रहने में विश्वास रखते हैं। वो नहीं कहते हैं कि अपने दिमाग में 3-4 थॉट्स लेके चलो ग्राउंड के अंदर। वो कहता है जब मैं ग्राउंड के अंदर जाता हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी बनती है, उससे पहले मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। So nice. Okay, कुछ मेरे पास सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, like kind of quick ones. So सबसे पहले ये जानना चाहते हैं मोहित, आजकल आप ब्रेकफास्ट में अपनी एनर्जी को अप रखने के लिए क्या खाते हैं? मेरा ब्रेकफास्ट में इन चीजों में थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि 80 से 85% बहुत डिसिप्लिन हूँ। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक मेरा ब्रेकफास्ट एक ही चलता है। जब मैं होटल्स में रहता हूँ तो भी मैं कोशिश करता हूँ एक ही ब्रेकफास्ट रखूँ। तो अभी अगर मैं घर पे हूँ तो वही मेरा मूसली चल रही है। मूसली के साथ, मूसली के अंदर मैं जो भी हमारे सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, आपके पंपकिन सीड्स हो गए, कुछ चिया सीड्स हो गए, ये सब हैं जो मेरे चलते हैं, उसमें डाल देता हूँ। फिर 4 अंडे, बॉइल्ड 4 अंडे हैं। देन आपका
बस एक गिलास जूस हो जाता है, कोई भी, तो ऐसे ही चलता है। यही है, इसके महीने में मेरे को लगता है 25 दिन ऐसे ही चलता है। तो 25 दिन आप सेम ब्रेकफास्ट करते हैं? माय गॉड, लाइक फॉर फिटनेस लाइक देयर इज सो मच दैट यू हैव टू डू, बट दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, दैट कीप्स द एनर्जी, द प्रोटीन एंड एवरीथिंग इन शेप, इन परफेक्ट क्वांटिटी। अच्छा, हु इज द क्रिकेटर, आपके हिसाब से कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जो सबसे ज्यादा फिट है? मुझे लगता है कि अभी तो आप ऑल ओवर अगर मैं पूरे वर्ल्ड में भी बोलूं तो अभी विराट ने जैसे स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं यार फिटनेस को लेके, वो बहुत ही ऊपर है। और हाँ। उसके वर्क एथिक्स अभी बहुत ही कमाल के वर्क एथिक्स है। इनफैक्ट हम लोग सेम एज ग्रुप के हैं लेकिन स्टिल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप ऑफ द फील्ड कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मैं बहुत ज्यादा फूडी था, लेकिन अगर पहला इम्पैक्ट मेरे ऊपर किसी ने डाला है इस चीज को लेके, तो मैं बोलूंगा कि वो विराट ने डाला। ओके, अच्छा, आपको लगता है कि एक मेरा एक जनरली सवाल है कि व्हेन पीपल लाइक आप लोग लाइमलाइट में आते हैं, तो जो कुछ फ्रेंडशिप्स थी जो बचपन से जो आप लोगों की रही, यू नो, बचपन के दोस्त, लंगोटिया यार जिन्हें कहा जाता है, यू नो, हाउ डू दे चेंज? मे बी शायद आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, बट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। सो दिस इज अ कॉमन थिंग व्हिच हैपेंस, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्टोरी। नहीं, हमारा एक्चुअली मेरे जो दोस्त थे वो स्कूल के ही दोस्त थे जो थे, तो हम लोग अभी भी साथ में है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लोग मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, सब अपने काम में बिजी हो गए हैं और सब फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे से बात करते रहें, उस ग्रुप में कुछ ना कुछ फनी एक्टिविटी करते रहें। और इनफैक्ट हम लोग अभी ये प्लान भी कर रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया मिले हुए, तो एक रियूनियन तो बनती है काफी टाइम से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने 15-16 साल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, तो मेरे क्रिकेट से हरियाणा के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं हम लोग साथ में, अंडर 19 से जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं अभी भी रेगुलर सारे के सारे साथ में। जो रणजी ट्रॉफी वाले दोस्त हैं वो सारे के सारे हम आसपास, बहुत सारे लड़के आसपास रहते हैं, तो हम लोग कॉफी के लिए जाते हैं, इधर उधर डिनर्स के लिए जाते हैं, तो साथ में हैं काफी सारे दोस्त। So I'm glad आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं and you're still enjoying, you know, that whole thing is still together. एक सवाल शुरू में आया था, in fact I had that question too. So काफी contemplation इस टाइम चल रहा है कि IPL होगा कि नहीं होगा। काफी चांसेस जो दिखाई दे रहे हैं, T20 is kind of not gonna happen because उसमें फिर भी ये है कि, you know, the teams have to kind of first fly down to Australia, then this and this, मतलब अलग अलग country के restrictions रहेंगे, but IPL comes down to an individual player, right? Whether they want to come to India or not. So do you feel कि IPL इस टाइम अक्टूबर में मे बी शायद हो जाएगा? कुछ इंटरनल कुछ अभी न्यूज है, कुछ फ्लोट कर रही है? यार मुझे लगता है कि जितना आप लोग मिस कर रहे हैं उतना ही मेरे को लगता है हम उससे शायद ज्यादा मिस कर रहे होंगे ग्राउंड पे जाने के लिए। अभी सुनने में आ रही हैं चीजें कि शायद हो सकता है, लेकिन जैसे आपको सुनने में आ रही है वैसे हमें भी सुनने में आ रही है। ऑफिशियली हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है अब तक कि होगा या नहीं होगा, या T20 वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है, या T20 वर्ल्ड कप अगर नहीं होता है तो उसकी जगह IPL होगी। तो अब तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जितना आप लोगों को सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पता चल रहा है, उतना ही हम लोग भी जब इंस्टा देखते हैं या कोई आर्टिकल आता है क्रिक इन्फो पे या किसी और चीज पे, उसे पढ़ लेते हैं, तो उसके थ्रू पता चलता है। तो यही सब चीजें हैं। लेकिन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर BCCI उस चीज के लिए टाइम निकाल लेती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि ये जो कोविड-19 वाली सिचुएशन है, इससे ऊपर हमें आना चाहिए। इन चीजों का हमें अच्छे से पहले इससे रिकवर करके ही हमें क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। फिर लगता है मुझे कि अगर IPL होती है तो फिर बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बंद दरवाजों में IPL करेंगे ना तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी लगेगा कि हम प्रैक्टिस गेम खेल रहे हैं। ट्रू। अब लेट्स होप फ्रेंड्स, आई मीन काफी सारी न्यूज अभी फ्लोट कर रही है। ला लीगा लीग व्हिच इज द स्पेनिश लीग, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि, यू नो, दे आर हैविंग द गेम इज ऑलरेडी ऑन, राइट? और उसके बाद अभी कल परसों की न्यूज थी, शायद इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी अलाउ कर दी गई है ग्राउंड के अंदर। आई थिंक बॉम्बे में, एटलीस्ट महाराष्ट्र में शुरू हो गई है फॉर प्लेयर्स। सो काफी चांसेस, लेट्स होप, यू नो, लेट्स बी पॉजिटिव कि होगा, बिकॉज़ वी विल बी एक्साइटेड टू सी द IPL। तो एक कोई यहाँ पे, चलिए मैं नाम भी लेती हूँ, बाहुबली है रजत, ओके, व्हिच इज योर फेवरेट टीम? किंग्स 11, CSK, और मैं दिल्ली कैपिटल्स भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल्स भी है। नहीं, बिल्कुल। अभी मेरी सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी CSK के साथ रही है, क्योंकि मेरा क्रिकेट खेलना वहां से शुरू हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि कप्तान के अंडर में 6-7 साल खेला हूँ, तो मेरी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। किंग्स 11 के साथ भी मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत 3 साल में उनके साथ खेला हूँ, बहुत अच्छा टाइम था मेरा। इनफैक्ट जो हमारा मैनेजमेंट था या जो भी हमारे लोग थे, प्रीति मैम थी, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने। लेकिन CSK के साथ मेरा कैरियर का जो चढ़ाव था वो जुड़ा हुआ है, जहाँ से मैंने मेरा अपना पीक देखा है, वो चीज जुड़ी हुई है, तो उस चीज को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ।
2013 का आईपीएल मेरा बहुत अच्छा रहा, 2014 में मैंने सीएसके के लिए पर्पल कैप जीती, देन 2013 के बाद मैं इंडिया खेला, उसके बाद मैं 3-4 साल इंडिया खेला लगातार। तो वो बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं उस टाइम पे मेरे लिए। तो मेरे लिए अगर मैं बोलूंगा तो अगर अभी इन तीनों टीमों में से बताना है, डीडी के लिए मैं खेला नहीं हूँ अभी एक बार भी। डीडी के लिए अभी मेरी रैंडमली 2-3 बंदों से बात हुई होगी, या कैफ भाई का फोन आ जाता है, विजय भैया का फोन आ जाता है, या जो हमारे नॉर्मल सोशल एक्टिविटी संभाल रहे हैं उनका फोन आ जाता है, तो उनसे बात हो रही है। अभी मैं उस तरीके से रहा नहीं हूँ टीम के साथ, लेकिन मैं बहुत ईगर हूँ इस टाइम पे कहते हैं ना रिकी पॉन्टिंग के साथ काम करने के लिए, क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में सुना है, उसके जितना ये सुना है कि वो प्लेयर्स को कैसे हैंडल करता है या क्या क्या चीजें बताता है। जितने भी लास्ट ईयर डीडी की टीम में 6 लड़के हरियाणा से थे, तो काफी हमारी आपस में बात होती थी, तो वो बताते थे कि रिकी पॉन्टिंग से अच्छा कोच उन्होंने नहीं देखा है। तो उस चीज के लिए मैं कहते हैं कि बहुत बैठा हूँ बेसब्री से कि कैसे भी करके एक बार आईपीएल शुरू होती है तो एक बार उस ग्रुप में जाऊंगा तो पता चलेगा कि वहाँ पे क्या माहौल है। एब्सोल्युटली। और आपसे पिंकेश पूछ रहे हैं, सर आपने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया? ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस आके देखिएगा आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी कि कैसे शुरू हुआ था। आपका सबसे टफेस्ट गेम कौन सा रहा है, यू नो, व्हिच यू फील वाज लाइक रियली डिफिकल्ट? मेरा सबसे टफेस्ट गेम था 2015 का सेमीफाइनल, जो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड कप में हम लोग अंडरडॉग्स थे। हमारी बॉलिंग यूनिट को बोला जा रहा था कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट है, नए लड़के हैं। उससे पहले मैं भी सिर्फ 2 साल ही खेला था इंडिया के लिए और इन एंड आउट रहा था इंजरीज की वजह से। शमी ये था कि शमी उस टाइम पे थोड़ा सा बन रहा था, अच्छा बॉल डालना शुरू किया था। उमेश भी सेट होने की कोशिश कर रहा था, और भूवी अनफिट था, और ईशांत अनफिट होकर टीम से बाहर हो गया था, जो मेन बॉलर थे बेसिकली। तो जब हम लोगों ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉल डाली, हम लोगों ने 7 मैचेस में 7 मैचेस में टीम को ऑल आउट किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक वर्ल्ड कप में ऐसा किसी ने किया नहीं है। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें इतना पीक पे बिठा दिया था उस टाइम पे। और उसके बाद जब आपका पूरे वर्ल्ड कप में एक दिन खराब जाता है, जहाँ पे आपने कहते हैं कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉलिंग यूनिट में 50% लोगों ने अच्छा किया और 50% लोगों ने अच्छा नहीं किया, तो उसका इफेक्ट टीम पे पड़ता है। तो वो मैच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस मैच के बाद मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, क्योंकि मैं 2014 वाला वर्ल्ड कप भी फाइनल हार गए थे, देन 2015 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हार गए। यस, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि आप यंग हो, अभी 2019 का वर्ल्ड कप है, तो आप हो सकता है कि आप 4 साल अच्छा क्रिकेट खेलो और वापस से टीम में रह के 2019 के वर्ल्ड कप में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सको। लेकिन 4 साल बाद की मैं सोच नहीं रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था उस टाइम पे। और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि 2-3 दिन या 1 हफ्ता भी बहुत कम टाइम बोलूंगा कि मैं अपने आप को संभालने में लगा था उस टाइम पे। तो वो मुझे लगता है कि उस मैच ने थोड़ा सा नीचे लगा दिया था मैं। सो आई थिंक ये, आई मीन ऑन फील्ड जो प्लेयर्स होते हैं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर डे, राइट? उसके बाद जो एनालिसिस होता है, यू नो, मेंटल एनालिसिस जो आपको अपनी परफॉर्मेंस के लिए करना पड़ता है, एंड देन कम बैक। आई थिंक इट्स अ मेंटल गेम जो लोग कहते हैं। इट्स नॉट इजी, लाइक इट्स नॉट इजी राइट नाउ फॉर ऑल ऑफ अस टू डील विद ऑल दिस। फॉर यू इट इज एवरी टाइम यू आर देयर ऑन द फील्ड, बट हैट्स ऑफ टू यू। आप जब भी अपना कम बैक करते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गर ही होता है, एंड आई होप एवरी टाइम वी सी यू ऑन फील्ड वी लव इट। आपसे एक सवाल यहाँ कोई पूछ रहा है, नेटफ्लिक्स पे सर क्या देख रहे हैं आजकल? सो आई एम गोना एंटरटेन सम क्वेश्चंस लाइक ये हमारे सौरभ भाई हैं, मैंने देख हाँ। लिया। सौरभ भाई बेसिकली मैंने बोला ना, ये सारे के सारे मेरे दोस्त ही लगे हैं। तो सौरभ भाई नेटफ्लिक्स पे क्या है वो, पौधा देखना शुरू किया है शायद अभी, क्या है? ओके, आई हैवंट सीन इट, क्या है? नो आईडिया। तो अभी देखना ही शुरू किया है मैंने। इनफैक्ट अभी उसके 2-3 ही एपिसोड हुए हैं, कि वो मेरे दोस्त ने ही मेरे को रिकमेंड किया था कि अच्छा है, तो देखो, तो मैं देख रहा हूँ अभी। वो बेसिकली इजराइल के ऊपर है। अच्छा, ओके, फेयर एनफ। सो एक ठीक है, आपकी कैसल रॉक करके और recommendation- आया है, तो कौन सा? श्वेता की फरमाइश, कैसल रॉक है एक, श्वेता की फरमाइश है। कैसल रॉक क्या है? हाँ। हाँ, तो वो भी अब वो देखना पड़ेगा इसे बीच में छोड़ के ना। अब श्वेता ने बोला है कैसल रॉक देखना। अच्छा, एक चीज और, सो दीज आर द रिकमेंडेशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम मोहित राइट हियर। अगर आप देखना चाहते हैं, प्लीज लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट। ओके, वन क्वेश्चन आई हैव। आप लोग जब बस में जाते हैं, यू नो, फ्रॉम द टाइम यू स्टेप आउट ऑफ द होटल एंड ऑन टू द फील्ड, राइट, देयर इज अ होल ड्यूरेशन। कई बार पास में होता है, यू नो, द स्टेडियम कई बार हल्का सा दूर होता है। उस बस में उस टाइम क्या सिचुएशन रहती है? डू यू गाइस जोक अराउंड, डू यू हैव फन, व्हाट हैपेंस इन दैट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन? डिपेंड करता है। जब आप लोग मैच खेलने जा रहे होते हैं तो उस टाइम सब कोशिश करते हैं कि सब अपने जोन में रहते हैं। उस टाइम पे सबकी प्रिपरेशन अलग अलग होती है मैच खेलने से पहले। तो बहुत सारे, मेरे को लगता है 80 से 85% लोग होते हैं जो गाने सुनते हुए जाते हैं, अपने जोन में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा छेड़खानी करना पसंद नहीं करते हैं। 10 से 15 लोग होते हैं
10 से 15% लोग होते हैं जिन्हें मजाक करना पसंद है, जिन्हें हंसी मजाक करना पसंद है, तो वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं लेकिन किसी ऐसे बंदे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं जो अपने जोन में है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे जा रहे हैं तो सब रिलैक्स वाला माहौल रहता है, सब एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग अपने जोन में रहना पसंद करते हैं कि ग्राउंड पे जा रहा हूँ तो मैं अपना 100% दूं, लेकिन प्रैक्टिस पे थोड़ा रिलैक्स रहता है और मैच में थोड़ा सा ज्यादा माहौल ऐसा रहता है कि नहीं, आप अपने जोन में रहेंगे तो ज्यादा बेटर। आप इंडिविजुअली मोहित कैसे, आर यू एग्रेसिव और यू आर लाइक शांत स्वभाव के प्लेयर? मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बीच में बोलता हूँ इन चीजों के। मेरा नॉर्मल जो नेचर है वो एग्रेसिव है, लेकिन मैं जब ग्राउंड पे रहता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा काम रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं उस टाइम पे एग्रेसिव होऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने गेम से साइड हो जाऊंगा और उसका इफेक्ट पड़ेगा पूरी टीम पे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे एक बेवकूफी हरकत की वजह से पूरा इफेक्ट टीम के ऊपर पड़े। तो वहां पे कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ गलत भी हुआ है तो मैं अगली बॉल पे फोकस करूँ, ना कि उस चीज पे रिएक्ट करूँ। अगर कोई प्लेयर कैच भी छोड़ देता है या कुछ भी हो जाता है, रन आउट भी होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक सेकंड, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा रिएक्शन ना दूं उस चीज पे। लेकिन नॉर्मल नेचर मेरा बहुत एग्रेसिव है, किसी भी चीज को मैं करने की कोशिश करता हूँ तो कोशिश करता हूँ एग्रेसिवली उस चीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ। फटाफट मैच भी खत्म कर देते हैं उसी एग्रेशन के साथ, सब प्लेयर्स आउट एंड वी आर डन। द काइंड ऑफ एग्रेशन वी नीड। होपफुली आगे भी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाए। आई एम श्योर, आई थिंक आप ऑल द बेस्ट होगा फॉर दिल्ली कैपिटल्स जब आप खेलेंगे। ओके, सम easy और fun questions I want to know about the team. आपकी like इस टाइम जो आपकी जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स है, या फिर चलिए इंडियन टीम की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा लॉस्टी कौन है? लॉस्टी एज इन दे डोंट नो क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता, लाइक उनको कुछ बोलो सुनते कुछ है भूल जाते हैं। इज देयर एनी लॉस्टी इन द टीम? देयर इज ऑलवेज अ लॉस्ट पर्सन इन द ग्रुप। नहीं, मुझे लगता है इसका जवाब आप किसी से भी मांगेंगे तो 90% जवाब तो आपको शमी के नाम से मिलेगा। शमी अपने अपने जोन में रहता है, उसे वो बॉल डाल के आएगा, उसे कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जब मन करेगा, जो मन करेगा वो बोलता है। वो अपने आप में ये कैरेक्टर रहते हैं ना, वो ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। कुछ फास्ट बॉलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिकली बॉल डालने के बाद फिजियो टेबल चाहिए होता है, बस बैठ जाओ। तो एक टीम में जब जितना भी मैंने देखा है बेसिकली, तो उसका एक फिजियो टेबल सेट रहता था कि भाई ये आएगा बॉल डाल के इसे मसाज के लिए फिजियो टेबल दे देना है। तो वो जो लॉस्ट कैरेक्टर की बात आप कर रहे हो वो मुझे लगता है कि शमी है कहीं ना कहीं। एंड सबसे एंटरटेनिंग कौन है? सबसे एंटरटेनिंग अभी हमारे टाइम पे विराट था, तो बहुत ज्यादा ये पंटरबाजी वो बहुत ज्यादा करता है, बेसिकली इधर उधर बहुत मजाक करता है और बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखते थे। लेकिन अभी जब से कप्तान बना है तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम के बाद से मैंने ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट देखा नहीं है, लेकिन उस टाइम के बाद से अब चहल आ गया है। चहल को सब देख ही रहे हैं, तो उसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभी जैसे उसकी हरकतें चल रही हैं तो वो एक हाथ में ना आने वाला बंदा है भाई। सो चहल की काफी सारी कहानियां हमने सुनी है और हमने देखा भी है, ही इज वन एंटरटेनिंग कैरेक्टर। लेकिन आई एम श्योर आपको भी फील्ड पे बहुत एंटरटेन करते होंगे जब आप लोग साथ होते हैं। सबसे बड़े फूडी कौन है? मोहित भाई इज द ओनली वन हु इज एंटरटेनिंग समबडी सेम। ये सिद्धार्थ कौल है। हम लोग एक्चुअली सारा फास्ट बॉलिंग का ग्रुप है हमारा, तो हम लोग सारे साथ में ऑफ द फील्ड बहुत मजाक करते हैं। कुछ भी चीजें होती हैं तो बहुत अच्छे से एक दूसरे का एंटरटेनमेंट तो कर ही लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा फ्लर्ट कौन है टीम में? चलो, या सबसे रोमांटिक कौन है टीम में? मैं पॉलिटिकली करेक्ट बोल रही हूँ, रोमांटिक या सबसे बड़ा फ्लर्ट कौन है टीम में? दोनों चीजें जो जिसका भी आप जवाब देना चाहें। मुझे लगता है क्रिकेटर का दूसरा नाम ही फ्लर्ट है यार। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर अभी सारे ही लोग अच्छे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब मैरिड है। अब मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा लोगों से उनसे नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है। सारे लोग जो मेरे ग्रुप के हैं, बहुत अच्छी लगी, सब लोग अब अच्छे हैं क्योंकि उनकी शादी हो गई है। हाँ, तो अभी सबकी शादी हो चुकी है। मेरे ग्रुप में भूवी, ईशांत, मैं, शमी, सिद्धार्थ कौल, ईश्वर, हम लोग सब ऑलमोस्ट सारे मैरिड है। तो सारे के सारे बहुत रोमांटिक हैं अपनी बीवी के साथ। लास्ट स्टेटमेंट हमने सुन लिया है, अपनी बीवी के साथ, दैट्स हाउ इट इज। चलिए काम करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे श्वेता हमारे साथ हैं एंड आई कैन सी हर, शी इज सिटिंग राइट हियर। उनको वापस से बुला लेते हैं। श्वेता, आपने गाना सोचा सबसे पहले तो? हाँ सोच लिया। तो पहले आप गाना गाइए, उसके बाद वी मूव ऑन फर्दर। ओके, आई नीड सम। यू आर ऑल सेट फॉर यू श्वेता। ओके, या स्टार्ट विद मी ना। अरे गाओ मेरे साथ। हाँ, मैं गाऊंगा। दिल का दरिया बह ही गया,
इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। बस ये कलकत्ता का Oh, अरिजीत this सिंह is गाना so आ गया इसका। sweet. We loved your voice. मोहित इतने ध्यान से सुन रहे थे और कि पता है क्या मुझे फर्क है आप हंसी दोनों के गाने में? मुझे हंसी आ रही थी, मैं हंसी रोक रहा था। क्यों इतना अच्छा इतना बढ़िया तो गाया? नहीं, बेस्ट पार्ट अबाउट योर सिंगिंग इज मोहित गा रहे थे बिल्कुल स्क्रीन पे देखते हुए, कंसंट्रेट करते हुए। एक बार भी उन्होंने ना श्वेता की तरफ नहीं देखा। श्वेता बिल्कुल मोहित को देखते हुए गा रही है, इतने रोमांटिकली, इतनी स्वीटली। रियली यू गाइस आर वेरी क्यूट कपल। चलिए आपके एक वो कहते हैं एक आज जो गेम हम लोगों ने केएफ और पूजा के साथ भी किया था, हम आप लोगों के साथ भी खेलना चाहेंगे। सो गेम बहुत आसान है। इट इज लाइक आइज वाइड शट इज व्हाट वी कॉल इट। आप दोनों से मैं एक सवाल पूछूंगी, सो ये आप बाद में देख के एंजॉय करेंगे, हमारी ऑडियंस के लिए है। सो बहुत आसान सा गेम है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप में से ज्यादा रोमांटिक कौन है, जैसे एक सवाल है, तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे, अगर आपको लगता है आप हैं तो अपनी तरफ पॉइंट करेंगे, अदरवाइज यू पॉइंट टुवर्ड्स द अदर पर्सन, दैट्स इट। और सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है और आंखें किसी भी पॉइंट पे नहीं खोलनी है। सो दैट्स हाउ इट्स गोना बी। ठीक है, आर यू रेडी श्वेता? ऑन रेडी। चलिए तो मैं अपने क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। चलिए पहला सवाल आपके लिए, हु लव्स स्लीपिंग द मोस्ट? ओके, हु इज द मोस्ट पेशेंट इन दिस रिलेशनशिप? मोस्ट व्हाट? किस पे पेशेंस ज्यादा है? पेशेंस। ओके, हु इज अ बेटर कुक? हु इज मोर स्टबर्न? अड़ियल ज्यादा कौन है? ओके, हु इज अ सोशल बटरफ्लाई? सोशल गैदरिंग्स में जाना किसे पसंद है? ओके, हु इज द मेसी वन? Who initiated the first kiss? Who is grumpier in the morning? Okay, who is the lazy one? Who fights the most? और या फाइट कौन इनिशिएट करता है सबसे पहले? एक को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ओके, who has the best taste in music? ओके, एंड दो सवाल और हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट, जो कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो जीतता कौन है? Who wins the argument? Okay, perfect. And who is more adventurous? ये सवाल मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं डेफिनेटली पूछूंगी कि who does most of the cleaning at home? Cleaning, सफाई कौन करता है घर की ज्यादा? Cleaning, yes. Perfect. And आप दोनों ड्राइव करते हैं, who is the better driver? अच्छा, अभी बंदी रहेंगी क्या आके? Last question, who is the better driver? Okay, perfect. Thank you very much, guys. You can open your eyes. Not bad at all. Actually, आपके काफी सारे आंसर्स मैच किए और काफी जो मुझे एक्सपेक्टेड था नहीं मैच करेंगे वो नहीं किए। बाकी आप बाद में देख लेना कि क्या रहेगा। But definitely this was a lot of fun. Okay, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी श्वेता, अगर आपको मोहित को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे करेंगे? एक वर्ड में डिस्क्राइब करूंगी मतलब कोई ऐसा उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनके बारे में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, नहीं पसंद है? पसंद है that he is very calm. हाँ, and क्या नहीं पसंद? क्या नहीं पसंद है? That he is very calm. No, he is very stubborn. He is very stubborn. He's very stubborn. Yeah. Okay, he's very stubborn and he's very calm. A calm and a stubborn person is a very weird combination. Yeah, I'm Virgo. Like, no, Virgos are very nice people. I'm a Virgo too. So ये क्या मतलब, वो काम और stubborn बंदे nice नहीं होते क्या? मतलब once he is like बहुत अच्छे। अड़ गया तो he is
like very stubborn, but yeah. Stubborn in some cases वो बोल रही है बेसिकली, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे वो चीज चाहिए, stubborn in that case. ओके, एक सवाल और है मेरा, लेट मी सी हाउ वेल यू गाइस नो ईच अदर। लेकिन मोहित, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सही बताएंगे कि वेदर जो श्वेता कह रही है वो सही है या गलत है। कौन सा ऐसा, या चलिए मैं उल्टा पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ और आप मुझे बताइएगा श्वेता, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिनके ऊपर आपका क्रश है बिसाइड्स मोहित? तो आप जवाब बाद में दीजिएगा। मोहित, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका क्रश, जिनके ऊपर श्वेता हैज अ क्रश? क्रिकेटर तो आपके सिवाय जो उन्हें बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कोई भी और है। ओके, श्वेता, आपको क्या लगता है? इन्हें सही लगता है, गलत तो लगता नहीं है, बट पसंद मुझे विराट बहुत है। I like क्रश विराट। नहीं है, क्रश नहीं है। विराट, I like विराट। क्रश है या नहीं है? नहीं, क्रश तो नहीं है। क्रश तो नहीं है। तो I don't want to create a fight right here. Thank you very much guys। लेकिन अभी क्लोज करने से पहले दो चीजें हैं। मोहित एंड श्वेता, इफ यू कैन, हमारा एक चैलेंज होता है which we give at the end of every show, which is called the Misfit Challenge with whoever is a celebrity। तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम केएफ ने चैलेंज दिया था, उनका चैलेंज ये था वॉल स्क्वाट होल्ड फॉर 3 minutes। और लेट मी टेल यू, द गर्ल्स हैव एस्ड दिस। और सबसे पहले जिसने किया वो उनकी वाइफ पूजा ने किया। सो पूजा has shared a video, she's done it for 3 minutes। So if you can just give your congratulations to her। And दो और हैं, सुनील कुमार and Kulleen Kathuria, who's all the way from Canada, who tried it। So if you can just congratulate them। और ये लाइव 2 मिनट में अगर खत्म हो गया तो मैं इसे क्विकली दोबारा से वो कर लूंगी, just finish the show। Yes मोहित, yes, हाँ जी। नहीं, मैंने बोला congratulations guys जिन्होंने किया है। तो yes, and मोहित, हम आपसे चाहते हैं कि you give a challenge for this time, which is valid for a week। एक हफ्ते तक ये चैलेंज रहता है। फ्राइडे को people have to just, by Friday they have to make a video and share it with us, which is the Misfit Challenge with Mohit Sharma। What is the challenge going to be? मेरा चैलेंज है बेसिकली, मुझे स्क्वाड्स बहुत पसंद है, ठीक है। अब कैफ भाई ने आपको वॉल सिप दे दिया था ऑलरेडी, तो पिस्टल स्क्वाड्स होते हैं, ठीक है। They are very tough। ठीक है, तो बेसिकली पिस्टल स्क्वाड आपको करने हैं, लेकिन देयर इज अ वेरिएशन इन इट कि आपको पिस्टल स्क्वाड बैठना है एंड देन यू हैव टू रोल इट बैक एंड देन आपको वापस से रोल करके पिस्टल स्क्वाड पे खड़ा होना है। Oh my God, that is really tough। हार गई, I know। फिर मुझसे तो एक भी नहीं होता है पिस्टल स्क्वाड, even with support नहीं होता है। I can show you if you want कि आप नॉर्मल पिस्टल, हाँ ठीक है। तो श्वेता एक बार फ्रंट कैमरा ऑन करना। Perfect guys, so this is the best example। We will just see कि पिस्टल स्क्वाड कैसे करना है, and trust me, this is going to be really tough। देख पा रहे हो ना संचाली? हाँ जी, चलो। Yeah, we can see, yes। तो now श्वेता you have to celebrate। तो आप सिंगल लेग पे पिस्टल स्क्वाट करेंगे पहले। पिस्टल स्क्वाट होता है सिंगल लेग पे, ठीक है। आपने किया, then you have to roll it back, then पिस्टल स्क्वाट पे खड़ा होना है। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही आसानी से जो मोहित ने कर दिया है, जो बहुत ही आसानी से कर दिया है, ये बहुत टफ है। लेकिन तो मोहित कितने कर दे। ओके मोहित गाइस, थैंक यू। एंड हम वो पिस्टल स्क्वाट कर रहे थे। यस, मोहित इज बैक। ओके मोहित, मैंने इतनी देर में ट्राई किया और मैं नीचे गिर गई। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। हाउ मेनी पिस्टल स्क्वाट्स आर टू बी डन? तो बेसिकली ये आपको एक पैर पे 8 करने हैं, तो दोनों पैर पे आपके 16 हो गए। ओके गाइस, इजीली हो जाएंगे यार, इजीली हो जाएंगे, डोंट वरी। बस वार्म अप अच्छा करिएगा, करने से पहले हो जाएंगे। अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिंचवा लेंगे। अच्छा, हम लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझसे बड़े लोग कह रहे थे कि इस बार चैलेंज ना इजी होना चाहिए। आई वाज लाइक हाँ, इट्स अप टू मोहित कि वो क्या देंगे। सो गाइस, द चैलेंज इज पिस्टल स्क्वाट्स, व्हिच इज वेरी टफ फॉर मी, बट आई एम श्योर आप में से काफी लोग होंगे। सो 8 into 8, सो बेसिकली आपने 16 टोटल करने हैं। Yes, so perfect। So this is the Misfit Challenge for this week। And Mohit, thank you very much। Shweta, thank you very much कि आप यहाँ आए। You have been absolutely amazing। Thank you। Shweta, thank you। You guys make an adorable couple। And friends, इनके साथ ही मैं अपने next week भी announce करना चाहूँगी। So Mohit, cricket हमारी country में हमेशा has been a beloved sport। But next week we want to get somebody, a game which is not so popular yet in India। लेकिन अगर जो लोग पावर लिफ्टिंग थोड़ा बहुत जानते हैं, आई एम श्योर काफी लोग होंगे ऐसे पावर लिफ्टिंग जानते हैं। देयर इज अ कंपटीशन इन द वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। एंड इंडिया एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन होता है, जिसमें हम इस बार एक नहीं, वी आर गेटिंग 3 players। वन हु इज द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हिच इज अमन मोरा। वी आर गेटिंग फिनलैंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, पावो पासो। एंड साथ ही में वी आर गेटिंग
स्कॉटलैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन who is Emma James Smith. who will be joining us. So there are 3 players from around the world जो अपने experience जो है हमारे साथ share करेंगे. So thank you everyone, and सबसे ज़्यादा thank you to you Mohit. Thank you for all the time that you've given before and after. Thank you, And Charlie. Thank you. No problem. thank you no problem. everyone. लेकिन एक आप ये पिस्टल स्क्वाड बता रहे हैं डिफिकल्ट, अगले हफ्ते पता चलेगा डिफिकल्टी किसे कहते हैं चैलेंज में। मैंने अगले कुछ हफ्ते नहीं 3 बोला है, challenge वो लोग आने आके देने वाले हैं ना। हाँ, अगले हफ्ते 3 मिलके देंगे और शायद 3 अलग-अलग भी दे सकते हैं. It's up to them कि क्या करना है. बिल्कुल। चलिए, होपफुली मैं देखना चाहता हूँ कि आप वो पिस्टल स्क्वाड्स करके मुझे भेजें। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी. मुझे पता है मुझसे पिस्टल स्क्वाड्स ही नहीं होते. मैंने पिछले दोनों चैलेंजेस करे. पिछला फर्स्ट वन वाज 50 बर्पीज, मुझसे 44 हुई इन 4 मिनट्स था, बट पीपल एस्ड इट इन. बर्पीज आर क्वाइट डिफिकल्ट मैन, दे आर नॉट, बर्पीज इजी नहीं है यार, दे आर डिफिकल्ट. हाँ, बर्पी में पिस्टल तो बहुत ही टफ है, लेकिन मैं ये बोलना बंद कर देती हूँ बिकॉज मुझे टफ लगता है. So thank you Mohit, and thank you for connecting with us. Thank you to everyone who has joined us. Thank you for making this episode so memorable. It was such a pleasure speaking to you. Thank you so much, Anjali. Bye. Take care. I'll see you around the way. Thank you. Bye.